کہ پچھلی کلاس کے اندر آپ نے فنکشن کو اسٹارٹ کر دیا تھا، اس سے پہلے آپ چھوٹا سا گرامر سیشن لے لیجیے گا اور اس کے بعد اپنی بات چیت پر ڈائلاگس پر آ جاتے ہیں. یقیناً بات تو سمجھ میں آ ہی جاتی ہے، اگر باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو لیٹس کم دا پوائنٹ ہو رہا ہے کہ آج کا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ لیٹس کم دا ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی میں آ جائیے گا. جیسے ہی ڈائریکٹلی کے اندر آتے ہیں ہم نے دیکھا تھا پچھلی کلاس کے اندر ہم نے کچھ ڈائلاگس کیے تھے، وہ ڈائلاگس ہمارے کیا تھے. یقیناً ہمارے انٹلیکچوئل ڈیولپرس کو ساری باتیں یاد ہی ہوں گی. لیٹس کم دا ویبن ایپ، اور ویبن ایپ کے اندر ہمارا بیس 7 ہے. بیس 7 کے اندر بھی جسٹ آؤٹ کیجیے، ہمارے پاس ماڈیول 2 ہے، چونکہ ہم ماڈیول 2 پر آ چکے ہیں. اپارٹ فرام دس ہمارے پاس پروبیبلی ہے 10 کلاس ہے. ٹوڈے وی آر گونا گو ود دی کلاس 11. Today we are gonna go with the class 11. کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو لیٹس اوپن دس ان دی ویژول اسٹوڈیو کوڈ، اور اس کو ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اندر اوپن کر لیتے ہیں. اینڈ بوم اپ ہم نے اس کو ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اندر اوپن کر دیا. Once I do this, let's have a files. تو ہم نے یہ کرنا ہے انیشلی سب سے پہلے فائلز بنانی جو کہ ہمارے ہائیلی انٹلیکچوئل ڈیولپرس کو پہلے سے معلوم ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ index.html apart from this what I need to do کہ سمپل دیٹ ہمیں اسکرپٹ کی فائل بھی چاہیے. for the reason what I need to do کہ script.js کی فائل ہم نے بنا دی. Once I do this اس سے پہلے میک شور کر دیجیے گا کہ آیا کہ پچھلی کلاس میں جو فنکشنز کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، ہاؤ مینی ڈیولپرز ہو آر میکنگ شور کہ جی سر میں تو 100% شور ہوں، مجھے ساری باتیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو باتیں پچھلی کلاس میں کی تھی. تو جو یہ والا سینیریو کہتے ہیں کائنڈلی لیٹ می نو پیرامتر پلیز. کچھ ڈیولپر ہمارے ڈرتے تھوڑا ہاتھ کر رہے ہیں، تو تھوڑا جب ہینڈلس کر رہے ہیں تو پورے ہینڈلس کر لیجیے تاکہ میں شور ہوں. کافی سارے ڈیولپرس ہیں جو اسٹل کنفیوزڈ ہے کہ کرنا کیا ہے. جی اچھا، جو ہینڈلس نہیں کر رہے وہ یہ بات میک شور کر رہے ہیں کہ انہوں نے گھر پہ جا کے پریکٹس کی، اور جو کہتے ہیں کہ گھر پہ جا کے پریکٹس نہیں کی تھی وہ ہینڈلس کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں نہیں بس دیکھا بھی نہیں تھا میں پریکٹس بھی نہیں کی تھی وہ ہینڈلس کر رہے ہیں. جو پچھلی کلاس میں تھے لیکن پریکٹس نہیں کی، دیکھا نہیں گھر پہ جا کے وہ ہینڈلس کر رہے ہیں. اچھا، جو کہتے ہیں کہ پریکٹس کی تھی وہ ہینڈلس کر رہے ہیں گھر پہ جا کے. جو کہتے ہیں گھر پہ جا کے میں پریکٹس کی تھی. اب دا پرابلم از دیٹ کہ کافی سارے ڈیولپر پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ انٹل اینڈ انلیس یو میک دی پریکٹس، جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے پروگرامنگ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. اب اس کو میں ایک دفعہ پڑھا دوں، ہم اس کو 2 دفعہ سمجھ لیں، اسٹل نمبر آف ٹائم اس کو سمجھ لیں، بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے. تو کیا کیا جائے ڈیولپرس بتا دیں. ڈیولپرس کائنڈلی لیٹ می نو آیا کہ کیا کیا جائے. سمپل از دیٹ وی آر جسٹ میکنگ شور کہ جی آج ہماری کلاس 11 ہے. فار دیٹ ریزن آئی ایم جسٹ گونا ہیو دی ٹائٹل ایز ویل اینڈ لیٹس کاپی دس اوور دس اینڈ ہیو ا بیسٹ لائک ا پاکستانی سافٹ ویئر انجینئر. تو ہم نے یہاں کی چپکی لگا دی. وہاں سے جیسے ہم نے اس کی چپکی لگائی بعد نیڈ ٹو ڈو کہ سمپل از دیٹ ہمیں اسکرپٹ ایڈ کرنی ہے. اسکرپٹ بھی جسٹ نیڈ ٹو ہیو ا سورس، اور سورس کے اندر ہم نے اسکرپٹ کا ایڈریس دے دیا. وہاں سے جسٹ لیٹس میک شور کہ جی آیا کہ میں فنکشن شروع کر دیا. فنکشن جب ہم نے شروع کیا ہم نے کہا تھا کہ فنکشن ایٹسیلف تھا. تو یہ ساری بات چیت تو ہم نے شروع کر دی تھی، لیکن ضروری ہے کہ آیا کہ اگر روز ایک ہی بات کا ریویژن کریں گے تو ایک ہی ٹاپک ہمارا کئی دن تک چلتا رہے گا. تو بڑے نیڈ ٹو ڈو کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی چیز پڑھ لیں تو آپ ایونچولی اس کو اچھے سے اسٹڈی کر کے آئیں، اس کی پریکٹس کر کے آئیں، اس کا ٹاسک کر کے آئیں، اینڈ سو مور مزید آگے کا بھی پڑھ کے آتے ہیں، مزید آگے کا بھی پڑھ کے آ جائیں تاکہ جب یہاں پر آئیں تو آپ کی کوآرڈینیشن بہت اچھی ہے. آپ بھی ڈائلاگ کر رہے ہیں جی آگے پڑھیں، آگے والا فنکشن پڑھیں. سر ڈیفینیٹلی ایجنڈا یہی ہے کہ آگے والا فنکشن پڑھیں. کافی سارے کانسیپٹ ہیں ہمارے ایکسل فنکشن کے اندر. اپارٹ فرام دس واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو کہ اپنی ڈائریکٹری کے اوپر چلے جائیں گے. ڈائریکٹری کو جانے کے بعد سمپل از دیٹ گونا اوپن دس ون ان دی براؤزر ایز ویل اینڈ بوم اپ ہم نے اس کو اوپن کر لیا. اور جیسے ہی ہم نے اس کو اوپن کر لیا تو واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو کہ ریلیونٹ فائل کو کلوز کر دیں گے اور ان ریلیونٹ ایکٹیویٹیز کو بھی زندگیوں سے کلوز کر دیں گے.
क्योंकि जब तक इरेलेवेंट रहेगा तो हमारा फोकस भी इरेलेवेंट रहेगा, कॉमर्स भी में कि जी रेलेवेंट कुछ करने लगेंगे तो ज़िंदगी की हमारी रेलेवेंट हो जाएगी। याद रखिएगा, जिस दिन कचरे से बाहर निकलेंगे उसी दिन बात समझेंगे कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। छोटे मोटे मसलों में, बुनियादी बातों में और बुनियादी यहाँ गेम में जब तक फंसे रहेंगे, जब तक फंसे रहेंगे, फंडामेंटल से आगे नहीं बढ़ेंगे, एक्सपोजर नहीं मिलेगा जिंदगी के अंदर। कुछ बड़ा करना है तो बुनियादों से बाहर निकलना होगा, और बुनियाद से मुराद मेरी वो काम जो आपकी ज़िंदगी में इररिलेवेंट हैं, गैर मकबूल हैं, फजूल में आपने अपने ऊपर डाले हैं, लेकिन उसका अपनी ज़िंदगी से कोई भी पॉजिटिव कनेक्शन नहीं। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी एक्टिविटीज़ को, इवन लोग क्रिकेट देख रहे हैं, कोई हकीकी मकसद नहीं है इसका। आपको उससे क्या मिलेगा? जो खेलने वाले वो कुछ कर रहे हैं, उनकी लाइफ सेटल हो गई है, कैरियर सेट हो गए, उनकी नस्लें सेट हो चुकी है। आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या उससे कुछ पॉजिटिव हासिल हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, वक्त का ज़ाया हो रहा है। बात सुना रही है? दो तीन नारे लगा दिए, आप स्लोगन हो गए, इट डजंट मैटर, कोई फायदा नहीं। दो दिन आपने स्पॉटलेस लाया, ठीक 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 कर दी, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। क्या फायदा? तो हाँ, अगर गेमिंग करेंगे हाईली अप्रिशिएट, अगर गेमिंग करेंगे हाईली अप्रिशिएट, गेमिंग गेमिंग मोस्टली अप्रिशिएट कर दो, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट को पॉजिटिव सेंस सेट करता है। अगर फरागा दे वक्त मिलता है तो गेमिंग करें, एक पॉजिटिव आपके ऊपर वाइब्रेट करेगा, क्योंकि हम डेवलपमेंट के अंदर है, तो ये चीज़ कुछ वैल्यूएट करती है। लेकिन सिर्फ क्रिकेट नहीं, अगर फिजिकल गेम खेलना है तो ये अच्छा है, लेकिन देखना है फिर पर, तो देखने क्या है, करें क्या है, जो फायदेमंद चीज़ें वो करें, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस जो गैर मौजू हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकालें। क्रिकेट की जैसे मिसाल दी हमने, जज्बाती हो गए थे, क्योंकि हमारे डेवलपर्स क्रिकेट बहुत देखते हैं आजकल, क्रिकेट की बातें की जा रही है, तो इसलिए हमने जज्बाती अंदाज में नहीं करें, ऐसा नहीं करें, नहीं करें, मजाक नहीं करें। दैट्स कम द पॉइंट जी। चलें जी, दैट्स कम द पॉइंट। और आया कि कुछ बातें हमने की थी, यकीनन हमारे डेवलपर्स को याद होती हैं, और हमने कहा था फंक्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे। फंक्शन वो डेवलपर जो कि गुफ्तार कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, काइंडली बी अटेंटिव, काइंडली बी अटेंटिव। जो डेवलपर गुफ्तार कर रहे हैं, गुफ्तार नहीं कर रहे। हमने ये देखा था कि फंक्शन इटसेल्फ मशीनरी सिस्टम, एक मशीनरी सिस्टम है जिसकी बिहार पे हम ये चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क हमने करवाना हो जिसके अंदर हर दफा एक नई वैल्यू हो, और डेफिनेटली क्या सेंस मिला हमें कि हमने एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवाना है, हर दफा में एक वैल्यू हो और एक मशीनरी सिस्टम हो जिससे बार बार ये काम हम करवा रहे हो, उसको हमने एक्सेल फंक्शन के लिया। अपनी जिंदगी के अंदर इनपुट देखें तो आपने देखा आपके ऊपर एक फेल लगा हुआ है, उसका फंक्शन एक्सेल क्या है कि रोटेशन करना, जैसे घाव पे आपको हवा मिले। आपने देखा आपके सिस्टम के अंदर एक बटन है लैपटॉप के अंदर, पावर ऑफ का पावर ऑन का, आपने जैसे ही क्लिक किया उसको पावर मिलती है और आपका लैपटॉप को मदद। दीज ऑल आर दी फंक्शंस, ये सब फंक्शन देख रहे हैं, इसमें बेसिकली कहीं ना कहीं लॉजिक्स लगी हुई है, बूलियन लॉजिक लगी हुई है कि भाई अगर यूजर ने क्लिक किया तो ट्रू मिल जाए, और जैसे ही ट्रू मिले तो यू है ना बोर्ड के अंदर ये प्रोग्रामिंग जाती है और वो उसको घुमा सर्किट के अंदर उसको क्या कर देता है, उसको ऑन कर देता है। तो ये इकोसिस्टम बैकएंड के ऊपर चल रहा होता है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस यही हमारी डेवलपमेंट और यही हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर है कि हमने जब भी कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवाना है और विद डिफरेंट वैल्यूज, विद डिफरेंट वैल्यूज, जब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हों तो इट्स सिर्फ कॉल्ड फंक्शन, इट्स सिर्फ कॉल्ड फंक्शन। बातें समझ में आती हैं क्या? सिंपल इज दैट, फंक्शन इतनी सी चीज, सिंपल इज दैट, फंक्शन इतनी सी ही चीज है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाले इकोसिस्टम के अंदर देखा जाए तो हमने पिछली क्लास के अंदर भी इसके ऊपर बात की थी, आया कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हमारे पास होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हमारे पास होती है पहले है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे ही हम इसको टैकल कर लेते हैं, कम ऑन दी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कम ऑन दी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो और कुछ क्लासेस हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग पर होंगी, एंड आफ्टर ओवर वी विल बी स्विचिंग ऑन दी, जो भी होगा फ्यूचर में देख लिया जाएगा। तो दैट्स मीन कि टाइप नंबर 2 चलिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सिंपल इज दैट, थोड़ा सा कंसाइज कर लें, मुख्तसर कर लें, क्योंकि वी हैव प्रॉपर्टी कवर्ड द प्रीवियस क्लासेस जिसके अंदर हमने पहले ही ये बातचीत कर ली। तो हमने ये कहा कि फंक्शन बनाना कैसे, हम उसके सेंटेक्स के ऊपर आ गए थे, हम उसके सेंटेक्स के ऊपर आ गए थे, हमने ये देखा था कि अक्सर जब हमें फंक्शन बनाना हो और फंक्शन के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स हैं, और टाइप से पहले जब हम फंक्शन को बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन।
फंक्शन डिक्लेरेशन हमने ये बात सीखी थी। फिर हमने ये कहा कि फंक्शन की जो पहली टाइप है इटसेल्फ नेम फंक्शन, इटसेल्फ नेम फंक्शन। तो हमने ये कहा कि भाई पहली जो हमारे पास टाइप है वो इटसेल्फ नेम फंक्शन है। और नेम फंक्शन में क्या होता है कि मैं इटसेल्फ फंक्शन कहता हूँ, फंक्शन के बाद उसका सिंटैक्स आपने देखना है। तो सिंपल इज दैट मैंने फंक्शन का और उसके बाद मैंने कहा कि जी मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका काम ये है कि वो सुबह उठ के हर यूजर को बोलेगा हेलो हेलो बॉब, हेलो जॉनसन, हेलो कैलकुलेटर, सो ऑन। ये जो ग्रीटिंग पॉइंट है, वो जो ग्रीटिंग करनी है, ये वाला जो इकोसिस्टम है, ये जो फंक्शन है वो मैनेज करेगा ये फंक्शन। हमने कहा ग्रीड हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये भी सीखा था कि इटसेल्फ फंक्शन की बातें की जाएंगी तो पैरामीटर्स की बातें की जाएंगी। हमने ये देखा था कि फंक्शन की बातें की जाएंगी तो आर्ग्यूमेंट्स की बातें की जाएंगी। तो हमने ये देखा कि जब पैरामीटर्स की बातें की जाएंगी तो दैट्स मीन वेरिएबल की बातें की जाएंगी। फिर हमने ये देखा आर्ग्यूमेंट्स की बातें की जाएंगी तो दैट्स मीन वैल्यूज की बातें की जाएंगी। बातें समझ में आती हैं कि नहीं? तो सिंपल इज दैट आसान अल्फाज के अंदर, आसान अल्फाज के अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे शायर कहना चाहते हैं वैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि पैरामीटर वेरिएबल है और आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ वैल्यूज। आपको ये बात पता है, आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि व्हेन यू नीड टू हैव अ वेरिएबल्स, जब आपको वेरिएबल बनाने हो तो उसकी वैल्यूज भी डिक्लेयर करनी होती है। खाली वेरिएबल बना लेंगे और ऐसा नहीं हो कि वैल्यू ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल इज दैट आपने वेरिएबल बनाया जिसको आपने फंक्शन की जुबान के अंदर एक सब पैरामीटर कह दिया, अपार्ट फ्रॉम दिस उसकी वैल्यू डिफाइन करनी थी, उसको आपने आर्ग्यूमेंट कह दिया। लेकिन कीप इन माइंड जब वेरिएबल और वैल्यू बनाते हैं तो वो प्रोसीजरल मेथड होता है। वो प्रोसीजरल मेथड होता है और वो एक लाइन के अंदर आ जाता है, सच इज नेम, जो कि अभी नीचे बनाएंगे, सच इज नेम। और नेम के अंदर मैंने कह दिया क्या राइज होता है, नेम के अंदर हो जाए अराइज। तो ये जो प्रोसीजरल मेथड था मैंने यहाँ पर उसका वेरिएबल बनाया एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहीं पर ही मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी और अराइज मैंने उसको दे दिया, जिसको मिला प्रोसीजरल। और ये था क्या, हमने वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी। बट इन अ फंक्शनल सेंस, इन अ फंक्शनल सेंस हम ये करते हैं कि वेरिएबल हम पैरामीटर से बना लेते हैं। हम जो वेरिएबल है इट्सेल्फ वो पैरेंथेसिस के अंदर बना लेंगे और उसको कह देंगे पैरम्स या पैरामीटर्स। तो इट्सेल्फ हमने ये कह दिया कि हमारा जो पैरामीटर होगा वो नेम होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई नीड टू डू कि आई जस्ट नीड टू हैव अ कोड ऑफ ब्लॉक, मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होना चाहिए जिसके लिए मैंने ब्रेसेस लगा दी। ये मेरा सेंटेंस टच था जो मैंने डिफाइन कर दिया या इट्सेल्फ जो हमने डिफाइन कर दिया। तो हमने क्या किया, ब्रेसेस लगा के ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर व्हाटएवर वाज द स्टेटमेंट यू हैव, जो कोई भी स्टेटमेंट आपके पास है, जो कुछ फंक्शनलिटी आप बनाना चाह रहे हैं, मशीनरी सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं। पहले भी मिसाल दी थी, अभी तो लोग चलाते हैं लेकिन लेकिन प्रोडक्शन की वेबसाइट में क्या लोग चलाएंगे? नहीं। मान लीजिए आपने आपकी वेबसाइट के अंदर डार्क थीम और वाइट थीम होती है, बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे व्हाट्सएप के अंदर होता है, सॉन्ग और फेसबुक में होता है। आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट वाइट मोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी टेक्स्ट, आपकी टाइपोग्राफी, आपकी बैकग्राउंड कलर सो और पूरी वेबसाइट का कलर ही चेंज हो जाएगा, पूरा यूजर इंटरफेस चेंज हो जाएगा। तो ये हम फंक्शन बना रहे हैं। अब सिंपल इज दैट इस लेवल पर, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं तो हमने सिर्फ लोग चलाने, लेकिन जब मैं आपको टास्क दिया करूँगा और अब एक ही क्लास के बाद इस तरह लोग भी सीख लेंगे तो पहले टास्क ही होगा कि आपने डार्क थीम और वाइट थीम बनाना। बात हमारी मतलब ये कि सिंपल इधर जब मैं क्लिक करूँ तो मेरी वेबसाइट जो है वो वाइट मोड में कन्वर्ट हो जाए, फिर मैं अगेन क्लिक करूँ तो वो डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट्स वी हैव प्रॉपर्ली लर्न दी एनिमेशन एज वेल, और उसके अंदर एनिमेशन भी होनी चाहिए। वो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि मैं क्लिक करूँ तो चांद बनते जा रहा हो, उठते जा रहा हो, वो चांद में कन्वर्ट हो जाए, कि वो चांद दोबारा उठते जा रहा हो, सूरज में तब्दील हो जाए। हमारे डेवलपर्स को हमारे डायलॉग्स पहले से पता लगने लग गया है क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। डायलॉग डायरेक्टर को बोलते हैं कि चेंज करना है, मसला हो जाएगा। But let's come to the point और आगे हमने कहा ब्लॉक ऑफ कोड है और सिंपल इज दैट एट दिस स्टेज वी आर गोना गो विद द ब्लॉक। हमने कहा लोग होते, हमने कहा कि भाई जैसे ही डिलीट करे, जैसे ही डिलीट करे अब हम स्ट्रिंग मेथोडोलॉजी को फॉलो ले लेंगे और हमने ये कहना है कि जी हेलो कह दीजिएगा और कह दीजिएगा क्या हाल चाल है। एंड आगे व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हमने ये कहना है कि भाई क्या कहना है, हमने डायनामिक वेरिएबल को यहाँ पर रेंडर करवा देना। डेफिनेटली जो वेरिएबल था उसको हमने यहाँ पे कॉल करवा देना। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट जब हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दी तो ये बात भी कांस्टेंट है कि उसकी कॉल भी जरूरी है, उसकी कॉल भी जरूरी है। तो मैंने ये कहा कि जी लॉग हो जाए और लॉग के अंदर सिंपल इज दैट व्हाट आई नीड टू डू कि जी क्या चल रहा है,
अच्छा कीप इन माइंड, ये सिनेरियो सारे पुराने हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल बातचीत की थी और आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है कि इसके ऊपर दोबारा बातचीत करें, एक लेंथी कॉन्सेप्ट था। तो अभी मुझे बता दें कि मैंने सिंपल रिजल्ट बस ये चेक करना है फंक्शन के अंदर कि लोग क्या आएगा, तो क्या मुझे इसको कंसोल में चलाने की जरूरत है, ये सिंपल रिजल्ट डायरेक्ट चला दूँ? ऐसे ही चला दें या लोग के अंदर चलाएं? ऐसे ही कंसोल लोग में चलेगा, ऐसे ही चलेगा। लेकिन कीप इन माइंड, हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी कि आया कि जब वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो उसकी वैल्यू शो नहीं होती, और जब उसकी वैल्यू शो नहीं होती वाले नीड टू डू के ऊपर लोग करवाते हैं तो लोग के थ्रू आउट वो वैल्यू की शो हो जाती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हम लोग करवा रहे हैं और लोग के अंदर चूंकि उसका काम ही यही प्रिंट करवाना, तो हमें उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि हम लोग चलाएं, तो हम डायरेक्ट अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एक्सेल में जैसे ही अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो डेफिनेटली मुझे वाट एवर वी हैव, जो भी हमारे पास लोग है स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमने सिंपल इस ये करना है कि ग्रीड के अंदर ऊपर जो वेरिएबल बनाया था सच एज पैराम्स या पैरामीटर, हमने उसकी वैल्यू दे देनी एज आर्ग्यूमेंट। अच्छा कीप इन माइंड, ये जो मैं कह रहा हूँ वेरिएबल वैल्यू, ये सिर्फ सिखाने के लिए और समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन एक्सेल जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो आपने कभी भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, वैनिश हो गए। आप समझ, आपने हमेशा इसको पैरामीटर कहना है और हमेशा इसको आर्ग्यूमेंट कहना है। कभी भी गलती से भी गलती नहीं करनी कि आपने इसको वेरिएबल बोल दिया और इसको वैल्यू बोल दिया, ये गलत हो जाएगी। सिर्फ समझाने की हद तक ये बात समझी जा सकती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर इंटरव्यू चल रहा है और आप उसको ये नहीं बोलिएगा कि जी ये वेरिएबल और वैल्यू, क्योंकि हम बातों को समझ रहे हैं। समझने वाला कॉन्सेप्ट अलग होता है और बताने वाला कॉन्सेप्ट अलग होता है। बात समझ आ रही है? हाउ मेनी डेवलपर्स वो हैव एक्सपीरियंस एज अ टीचर, कितने डेवलपर्स हैं जिनको टीचिंग का सब एक्सपीरियंस हो? तो एक लाइन किसी ने किसी को पढ़ाई, कितने डेवलपर्स हैं जिनको टीचिंग का एक्सपीरियंस? क्यों क्यों मजाक करें? अच्छा मजाक भी करें, कितने डेवलपर्स हैं जिनको टीचिंग का एक्सपीरियंस? अच्छा टीचिंग से मुराद डजंट मैटर कि वो जो कन्वेंशनल टीचिंग होती है, वो टीचिंग से मुराद कुछ भी मैकेनिकल टेक्निकल कुछ भी किसी को बताया हो, ऐसा जिसको आता है इट्स कोडिंग किसी को बताई हो आपने, ये वाला जो टीचिंग एक्सपीरियंस होती है, कितने डेवलपर्स हैं जिनको? साउंड क्रिएटिव, साउंड क्रिएटिव। तो जिनको है उनके बात समझ में आती होगी कि जब वो कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखने का सेंस अलग होता है, और जब उस बात को कन्वे करते हैं, आसान बात ऐसे कह रहे हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज या स्कूल में बोर्ड पर जाके असाइनमेंट किसने की, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट के बाद कोई बात जैसे की हो, छोटी सी कोई 3-4 लाइन की बात हो और उसको बोर्ड पे जाके कन्वे किया हो, अब वो फिर स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज लेवल पर हो या डेफिनेटली यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, ये वाला काम किसने किया, इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। भले स्कूल लेवल पे किया हो, मतलब 2-3 लाइन आपने रीडिंग जाके की हो या सिर्फ कुछ उसको मीनिंग बताई हो बचपन में करें, प्रोजेक्ट दिखाया जाए, तो वहाँ क्या करते थे आप? वहाँ ये करते थे कि जब आप जाते तो उसमें प्रैक्टिस किया करते थे, और प्रैक्टिस करते थे तो आप जो पढ़ते थे वो अंदाज अलग होता था आपका, उसकी जो लर्निंग प्लेटफॉर्म था, वो सिस्टम था, इकोसिस्टम बिल्कुल चेंज होता था। लेकिन जब वहाँ के डिलीवर करते थे वो अंदाज बिल्कुल चेंज होता था। अगर याद हो बचपन में जिन्होंने तकरीरें की हो तो वो रट्टे लगा के जाते थे, और रट्टे लगा के जाते थे पर्चे पे, और जाते थे कि हाथ पाँव कपकवाने लग जाते हैं, फट से ऊपर वहाँ जाके जल्दी जल्दी ट्रेन की तरह बोलना शुरू कर दिया, मवाद दूसरा बोल रहे थे। तो दैट्स मीन कि इसी तरीके से अभी जो बातचीत हम करते हैं वो लर्निंग फेज के अंदर करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर ये बातचीत आपने नहीं करनी, फिर इसको आपने कन्वर्ट कर देना प्रोडक्शन के रिकॉर्ड में। बात में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल इज गोइंग टू इंडिकेट द पॉइंट कि यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो लर्निंग फेज के अंदर पढ़ रहे हैं, और आप आगे किसी को कन्वे करेंगे वो प्रोडक्शन लेवल पर होगा, तो प्रोडक्शन लेवल पे पिच आपकी डिफरेंट होगी, ऐसे नहीं होगी जैसे यहाँ बातचीत कर रहे हैं। जी लेट्स कम द पॉइंट, और आया कि मैंने ये कहा कि आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिएगा, और सिंपल स्टेट मैंने ये कहा कि जी मेरी जो वैल्यू है सिर्फ आर्ग्यूमेंट है वो अलाइज है, मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर दिया, और वंस आई डू दिस व्हाट आई नीड टू डू, ये सिंपल स्टेट अपने ब्राउजर पे चले जाएंगे, लेट्स हैव इंस्पेक्शन, और हमने स्पेक को ओपन कर दिया है एंड, और हमने देखा कि जी हमारे पास मैसेज आ जाता है, लोग आ जाते हैं, कैसा है, क्या हाल चाल है, अलाइज, क्या चालें अलाइस, और दैट्स मीन कि हमने डायनामिकली अलाइस को रेंडर कर लिया है, सब कॉल कर लिया, और हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन कॉल हो चुका है, जो कि वही वाली डायलॉग्स है जो पिछली क्लास में थी, अननेम्ड फंक्शन कॉल्ड
नेम फंक्शन। ये तो नेम फंक्शन की बात है और है कि इसकी एग्जांपल हमने ऐसे भी देखी थी कि सर मान लीजिए कि जी हमें एक फंक्शन बनाना है, इसका नाम हमने देना है सम एंड सम, उसके अंदर पैरामीटर पास करने हैं ए कॉमा बी एंड अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई नीड टू डू कि जी यहाँ पर आके मैंने ये कहना है कि जी रिटर्न इटसेल्फ हो जाएगा और ए प्लस बी रिटर्न हो जाए। तो सिंपल इज व्हाट आई नीड टू डू, सिंपल इज दैट व्हाट आई नीड टू डू कि मैंने यहाँ पर आगे सम कहना है और सम के अंदर ए की वैल्यू 4 पास कर देनी है एंड बी की वैल्यू सिंपल इज दैट हमें 7 पास कर देनी है। अब अगेन द क्वेश्चन इज गोना हैव कि जी क्या मैं सिंपल सम को कॉल कर दूं और मुझे मेरा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा या कुछ और करने की जरूरत है? जो जो कहते हैं कि सर लोग लगेगा वो हैंडल्स कर लीजिए, जो जो कहते हैं सर कि सर लोग लगेगा वो हैंडल्स कर लीजिए, मुझे कहते हैं सर इसका आउटपुट शो नहीं होगा आपके पास, उसको शो करने के लिए आपको लोग लगाना होगा यहाँ पे, तो ये कहते हैं पॉइंट सर। मतलब ये कुछ ही डेवलपर्स हैं जो ये कहते हैं, बाकी डेवलपर्स कुछ नहीं कहते। तो दैट्स अबाउट लॉग। हमने ये कहा कि लॉग होगा और सिंपल इज दैट हमने लॉग के अंदर यही वाला फंक्शन कॉल कर दिया उसकी आर्ग्यूमेंट्स के साथ, और पहली आर्ग्यूमेंट हमारे पास 4 की अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड आर्ग्यूमेंट इज गोना बी द 7। दोनों आर्ग्यूमेंट हमने पास की एंड लेट्स हैव अ आउटपुट एंड लेट्स डू अ, तो हमारे पास इटसेल्फ 11 आ चुका है, इटसेल्फ 11। तो दैट्स मीन कि अभी कैसे हुआ, चूंकि हमने लोग किया और लोग के अंदर रिटर्न इटसेल्फ लॉगिंग वैल्यू नहीं है, प्रिंटिंग वैल्यू नहीं है, तो हमने जैसे ही लोग के अंदर फंक्शन चलाया तो वट एवर जो उसके क्रेडेंशियल्स थे, जो कुछ भी उसकी रिसोर्सेज थी, जो कुछ भी उसकी लाइन ऑफ कोड था वो हमें शो हो गया। तो उसके अंदर रिटर्न करवाया हुआ था और रिटर्न की फीचर है कि वो लोग के अंदर शो हो जाती है, लेकिन अगर डायरेक्ट फंक्शन खोल दें तो कभी भी शो नहीं होगी, तो उसके लिए आपने फिर अगेन लोग करना होगा। जी बस यहाँ तक की तो वो सारी बातें जो कि पिछली क्लास की बातें थी, अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो काइंडली लेट मी नो, पूछ लीजिए, वरना वो है फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लें, एक बार देख लें, इस कोड को अच्छे से देख लें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर रेडी टू फ्लाई। फिर हम प्रवास करने के लिए अब सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, अब सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, मेक श्योर कर लें कि सीट बेल्ट आपने बांध लिया, जल्दी बांध, वरना जैसे ही प्रवास के लिए मुड़ रही है तो मसले नहीं होते, फिर नहीं जाए, कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए। जी देख लें, देख लें, 30 सेकेंड का पोस्ट ले लें और देख लें कि आया कि क्या कुछ हमने कर लिया। जी डॉक्टर, किसी का कोई सवाल अक्सर है तो काइंडली पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर गोना मूव, फिर हम मजीद आगे, फिर हम मजीद आगे बढ़ते हैं। फंक्शन को कंसोल के अलावा कैसे लोग करें, कैसे, तो फंक्शन को कभी भी लोग करने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट थिंग इज फंक्शन को लोग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन इटसेल्फ लोग होने के लिए बना ही नहीं है। फंक्शन का काम है कोई मशीनरी सिस्टम बनाना जिसकी बिहाफ में पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करें और हर दफ़ा वैल्यू चेंज हो। अभी भी बताया जैसे हम बटन बना रहे हैं और उसकी बिहाफ पे डार्क मोड और लाइट मोड ऑन हो जाता है। अभी अभी बताया पिछली क्लास के अंदर कि फॉर्म का डेटा है, मैं क्लिक करूँ और मेरा फॉर्म लॉगिन हो जाए, मेरी वेबसाइट लॉगिन हो जाए। अभी जो लॉगिन वाला सिनेरियो है ये कैसे होगा कि मैं सिंपल इसे क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, क्रेडेंशियल्स जिसको बोलते हैं, वो बैकएंड पर फॉरवर्ड होगा। लेकिन ये करेगा कौन, भेजने वाला कौन होगा, अगेन फंक्शन। मान लें आपने गेम बनाया है और गेम का काम ये स्टार्ट है, वो एक गेम हुआ करता है, अगर मुझे नाम रिमाइंड नहीं हो रहा सिर्फ, लेकिन एक गेम होता है जो ऐसे ऐसे ट्रैकिंग टाइप का गेम होता है, बट नहीं उसमें बड़ी होता है लेकिन वैसे फ्लाई करते हैं आपने, बड़ा बेसिक सा गेम है 2D गेम, और आप उसको ऐसे पुश करते हैं तो ऊपर नीचे होता रहता है और उसके बीच के अंदर फ्लफी बर्ड, फ्लफी बर्ड डेफिनेटली उसमें ऑब्स्टिकल सारे होते हैं, मतलब ऐसे पंप आ रहे होते हैं या उसमें कोई स्टोन सारे होते हैं, फ्लफी बर्ड्स डेफिनेटली। ये नहीं पीछे कौन सा बनाया है,
کیونکہ ڈیفینیٹلی ساؤنڈ بیوٹی کے انڈسٹری کے اندر اور ہمارے ٹیک کے اندر ہم صرف لمیٹیشن ہیں کہ 2D گیمس بنا سکتے ہیں، کیونکہ 3D پہ جائیں گے تو اس کے انجنس ہمیں یوز کرنے ہوں گے، تو 2D گیمس 3D 2D شیئر کریں گے. اچھا میری ریسورسز کے بارے میں بات کریں گے تو یہ سمجھ لیں میرے پاس زیرو ریسورس. جب آپ انڈسٹری کے اندر کسی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو پچھلا جتنا بھی ماضی ہے پاسٹ ہے وہ سب بلر ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آج سے 5 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا، آپ انڈسٹری پہ اس لیول پر آ جائیں گے، لیکن ریسورس آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ریسورس سے مراد یہی ہے آپ بولیں گے پورٹ فولیو، آپ بولیں گے پروجیکٹس، تو اس لیول پر آنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں شفٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے بیک گراؤنڈ کی خلاف کہ بھائی یہ ڈیولپر 3 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے. وہ پروجیکٹس کی باتیں نہیں کرتے تھے، پروجیکٹس کی باتیں کب کی جاتی ہے؟ انیشیل لیول پر جب ہم بیسک پر اور ہمیں کہیں جاب چاہیے تو ہم آپ کو پورٹ فولیو کی بات کریں گے. لیکن جب آپ انڈسٹری میں 2-4 سال کام کر لیں گے تو یہ دیکھیں گے بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ بیک گراؤنڈ پہ آ جائیں. اب keep in mind, the question is there, sir, if you are a software developer, what do you need to do to having a mentorship? Mentorship کی کیا ضرورت ہے؟ First thing is there کہ بڑی اسٹیپس کی mentorship کنونشنل اور ٹپیکل mentorship کیسے ہے؟ پہلی بات کہ یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو mentorship ہو رہی ہے وہ ٹپیکل ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے، کالج سسٹم ہے، یہ یونیورسٹی سسٹم ہے اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہماری جو mentorship ہے وہ ہماری ڈیولپمنٹ کی mentorship ہے. تیسری بات ہر چیز پیش ہوتی ہے کی پیمنٹ، آپ کے الفاظ بھی پیش ہو گئے. اب سب کو جن کو پتا ہے کہ بھائی یہ مینٹرز ہیں، یہ ٹرینرز ہیں، پھر اسی اسٹریم کے اندر پڑھاتے ہیں. سچ ایس ایس ایم آئی ٹی پاکستان کا اچھا ایک ہائیلی ریپوٹیڈ پلیٹ فارم ہے یہ نالج اسٹریم. اینڈ سو وہ جتنے بڑے پلیٹ فارمز ہیں ان کی پروفائل کا جب اسٹیمپ آپ کے اوپر لگے گا تو لوگ آپ کو اپروچ کریں گے. Such as I have delivered number of webinars in the international platforms such as Knowledge Stream. اور Knowledge Stream کے اندر میرے ویبینار ہو چکے ہیں سر، اگر میرے پروفائل پہ جائیں گے وہاں پر ہو چکے ہیں اور سر ابھی بھی ہو رہے ہوتے ہیں ویکینڈس پر. تو صرف لوگ آپ کو ریچ کرتے ہیں آپ کی پروفائل کی گراف پر. تو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کو اپنے آپ کو پبلک تھوڑا سا کرنا ہے اور جیسے پبلک کیسے اپنے کام کی گراف پر. اور آج جو ٹرینرس آ رہے ہیں وہ جو اسپیکرز آ رہے ہیں ان کی پروفائل پہ جائیے گا 50K کے فالوورس ہیں اور اٹ صرف کیسے ہوا کہ وہ ریگولر کسی طریقے سے مینٹرشپ کرتے ہیں جس کی بنا پہ وہ ان کی پروفائل یہاں سے تو لوگ آپ کو جانیں گے تو ہی کچھ ہوگا مارکیٹ کے اندر. جب کچھ لوگ آپ کو جاننے لگ جائیں گے یہ کچھ آپ کی پروفائل ہائیلی آپٹیمائز ہو جائے گی تو آپ مارکیٹ کے اندر موو کریں. پھر آپ کو پورٹ فولیو کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتا پھرتا پورٹ فولیو چلتا پھرتا بات ہماری ہر بات کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایجنڈا ہے. تو آپ ہماری بھی ایکٹیویٹیز کو غور کریں گے تو آپ کو باتیں سمجھ میں آنے لگیں. اور عزیز مبارکہ ہے کہ ہم نے دانش مندوں کے لیے نشانیاں چھپا دی ہیں. تو غور و فہم کریں، غور و فکر کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہو کیا ہے. اب جو ڈیولپرس پوچھنے سر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس کو وہ ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں اور پھر خود اس میں انالائز کریں کہ کیوں کر رہے ہیں. اور کوئی بھی چیز بے معنی بے مقصد نہیں ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد. ہر بات کے پیچھے ایک موٹیو چھپا ہوا ہے. اور جس دن یہ بات آپ سمجھ جائیں گے آپ انڈسٹری کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچ جائیں گے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ اتنے راز میں بتا دیتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ راز میں اتنے بتا دیتا ہوں، انڈسٹری کی اتنی باتیں میں لے کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، مسئلے نہیں ہوتے. فاؤنڈرس کا میں پکڑ نہیں لیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو. اور ابھی ہم نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ ایک لیڈ جنریشن کی پروسیس ہوتا ہے اور ورک شاپ کے اندر بتا دیں گے یہ والا جو سسٹم ہے یہ بتا دیں گے. لیکن 3-4 سافٹ ویئر ڈیولپرز آئے، فاؤنڈرز آئے اور ان کا ایسی غلطی سے بھی غلطی نہیں کرنا، مارکیٹ خراب ہو جائے گا. بھلے تمہارے ڈیولپر اس نے 600-700 ڈیولپرس کو پتہ لگ گیا تو مارکیٹ کا تو بیڑا کر. ویسے یہ آج کل مارکیٹ خراب چل رہی ہے تو ایک جو طریقے ہمارے پاس اس سے آسان طریقے سے کام ہو جاتا ہے. تم نے وہ بھی بتا دیا تو ہم کیا کریں گے، پھر ہم کیا رہیں گے. تو جو ریموٹ جاب کر رہے ہیں کمپنی کے ساتھ ڈائریکٹ کلائنٹ کے ساتھ میٹ اپ کرتے ہیں ان کا وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو انیشیلی ڈائریکٹ آفر سے اور لیڈ جنریشن کے ذریعے پروجیکٹس لاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ فلٹر کر لو جو ہائیلی کوالیفائڈ سافٹ ویئر ڈیولپرس ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں انڈسٹری کے اندر، ان ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں ان کو کر لو، سب کو بتا دیں تو مسئلہ ہو جائے گا. کیا کرنا چاہیے ہم خود کنفیوز ہیں اور ابھی تک ورک شاپ میں رجسٹر کر رہے ہیں. فائبر والے سب تو تیار ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں تو سب کچھ بتا دوں گا. $10,000 کی ان کی انکم ہے فائبر کے اوپر. انکم ان کی ڈیفینیٹلی زیادہ ہی ہوگی لیکن وہ شو نہیں کریں گے ساری باتیں کانفیڈینشیل سے.
ये भी बड़ी बात है कि कोई 10,000 की आपकी डायरेक्ट इनकम भी शो करवा दो, उसी प्रोफाइल के ऊपर काम भी करवा दे, एक बड़ी रेयर बात है। तो डेफिनेटली हमारे पास इसी तरीके से ऑफर का जरूरत हमें, फिर उसके ऊपर भी वही प्रोफाइल शो करवाएंगे जिसके ऊपर बिजनेस जनरेट हुआ है। अब ऐसे तो बिजनेस काफ़ी सारी प्रोफाइल्स हैं, जिनका सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिनका फाउंडर की बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन सारी यूज नहीं कर सकते, सारी शो नहीं करवा सकते, कॉन्फिडेंशियल डेटा इसके अंदर। तो क्या होगा कि जो डेफिनेटली बिजनेस होगा, लेकिन जो नॉमिनल प्रोफाइल होगी जिसमें 500, 1000, 1500 का बिजनेस होगा, वो वाली ये शो कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भंड हो जाता है गलती से और हमारे हैकर्स डेवलपर कुछ हैकिंग की तरफ जाते हैं, तो कम से कम बात समझ लें, वरना मसला हो जाएगा। चलिए लेट्स कम द पॉइंट। और आगे की ये बातें तो होती रहेंगी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सिंपल स्टेट हमने ये कहा कि जी फंक्शन के ऊपर हमने बात कर ली है। सेकंड जो टाइप है हमारे पास, सेकंड जो टाइप है फंक्शन की, इट्स कॉल्ड एक्सप्रेशन फंक्शन। ठीक है, अब कोई बताएगा कि इसको सेंस बन रहा है कि एक्सप्रेशन फंक्शन से क्या मुराद है हमारी, एक्सप्रेशन फंक्शन से क्या मुराद है हमारी। जी डॉक्टर बताएगा। ये एक्सप्रेशन फंक्शन टाइप नंबर 2 है, पहली टाइप की नेम फंक्शन, सेकंड टाइप है एक्सप्रेशन फंक्शन। क्या सेंस मिल रही है इससे आपको? एक्सप्रेशन, हमने एक्सप्रेशन पहले भी नहीं पढ़ा है। हाँ, एक्सप्रेशन क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एच टू, फिर लॉजिक होती है किसकी? जैसा कि और ये नंबर को जो पता करें मुझे लॉजिक है, उसी को हम एक्सप्रेशन कह देंगे। बिल्कुल दुरुस्त नहीं कहा, थोड़ी बहुत गड़बड़ है, थोड़ी बहुत गड़बड़ है। फंक्शन का एक्सप्रेशन है ना, ये तो गली गली के बच्चों को पता लग चुकी है, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन जी हाँ, लॉजिक बनाना, तो लॉजिक बनाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो ये एक्सप्रेशन। अब बात बटन पे क्लिक करो, अलर्ट हो जाए या कोई और परफॉर्म एक्शन हो जाए जी। इसमें वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स आर क्लोज टू बी, क्लोज टू बी, क्लोज टू बी, वहाँ से यहाँ वाले जवाब दे रहे हैं, खाली वहाँ वाले जो डायलॉग्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मुस्कुराहट कर रहे हैं, समर एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और आपके बिग बॉस नहीं आए आज, मोहतरम शेख साहब, नहीं पता, खबर लेते रह गए मुझे, खबर लेते रह गए, एक लाख याद है, अच्छी लाख याद है कि दूसरी खबर लिया करें जी। यहाँ से भी बताया सर, collection of variables and numbers and operators। शायर ने आसान बात को घुमा फिरा के बड़ा ही मुश्किल कर दिया, बड़ा ही मुश्किल कर दिया। सीढ़ियां बज रही, सीढ़ियां बज रही, अरे जी बताइए। वेरिएबल और ऑपरेटर मिलके एक्सप्रेशन बनते हैं। अच्छा, हाँ, क्लोज टू बी, क्लोज टू बी एक्सेप्ट और क्या था इसका? कुछ जगह पर चैट जीपीटी कर रहे हैं, कुछ जगह पर चैट जीपीटी कर रहे हैं, बुक से देख रहे हैं, पुरानी क्लासेस में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से तो मिल जाए। मिल गया, मिल गया, नहीं मिला, ढूंढ लें, ढूंढ लें, पहले 10 मिनट ढूंढ लें, ढूंढ लें आराम से जी। बताएं, नीचे देख के बात क्यों करते हैं, ऊपर देख के बात करें। नीचे क्या है? गूगल, मोबाइल, नोट पैड, पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था नेट सर ये
क्लास 3 में कि हमने पढ़ा था, फंडामेंटल्स में पढ़ा था, तो डेवलपर ने कहा कि सर जी एक्सप्रेशन वो होती है ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। जिन डेवलपर ने कहा वेरिएबल प्लस ऑपरेटर, उनकी बात भी सही है, लेकिन इटसेल्फ एक्सप्रेशन वाले सेंस के अंदर उसको हम ऑपरेंड्स कहते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं उसको ऑपरेंड्स कहते हैं, और उसके ऊपर जो फंक्शन किया जा रहा हो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सो ऑन, उसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये एक्सप्रेशन होती है, और सिंपल इज दैट। एक्सप्रेशन ये नहीं होती, आप गलत मायने निकाल दो। पहले भी बात आया है कि देखने का ज़ाविया तब्दील करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो नज़र आता है असल में वो नहीं होता। एक्सप्रेशन में आपको ये दिखाया गया था कि सिंपल इज देट, मैंने ये कहा कि भाई रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल हो और उसके अंदर a प्लस बी हो। जितने भी लॉजिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, वहां पर सिर्फ ये वाला सिनेरियो यूज किया था। लेकिन जिस दिन मैंने सिंगल, हमने सिर्फ पर्टिकुलरली इस बात के ऊपर बात की थी कि एक्सप्रेशन इटसेल्फ क्या होता है, तो वहां पे हमने एक वेरिएबल बनाया था और उसको डिक्लेयर किया था। बात में आती, उसको डिक्लेयर किया था इटसेल्फ। तो वहां पे क्या हो रहा था कि वेरिएबल बनाया, और उसके बाद हमने ये बताया कि जी यहाँ पर एक ऑपरेंड्स है एंड इटसेल्फ यहाँ पे ऑपरेटर है, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर जाके सेव हो गई। ये पूरी हमने एक्सप्रेशन कहा था, लेकिन इस बात को हमने मुख्तसर कर दिया था जब हमने फंक्शन पढ़ा, जब हमने लूप पढ़ा, जब हमने प्रोसीजर के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, तो वहां पर हमने सिंपल इस डेट क्या किया था कि इस सिनेरियो को यूज करना शुरू कर दिया था। तो पॉइंट इज डेट कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल होगा, और मान लीजिए वो वेरिएबल क्या होगा, मान लीजिए मेरा फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या चाहिए मुझे, ग्रीट चाहिए। मान लीजिए ग्रीट इटसेल्फ अगेन मेरा फंक्शन है, मैंने ग्रीट ले लिया। अब मुझे पता है जब मैं एक्सप्रेशन बनाता हूँ, बचपन से एक चीज तो मैं पढ़ता हूँ, एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, मुझे भी नहीं पता, जो भी है मुझे नहीं पता, हम मैथ नहीं पढ़ रहे। मान लें थोड़ी देर के लिए ए बी और होल करके स्क्वायर, सही है, मान लें थोड़ी देर के लिए, मान लें मैथ तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन कीप इन माइंड पहले उसका वेरिएबल होता था, उसके बाद उसकी फुल फॉर्म जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये सिनेरियो होता है। तो सिंपल स्टेट हमने ग्रीट कहा, ग्रीट के बाद इक्वल लगाया, उसके बाद बताया कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं फंक्शन की, और फंक्शन के बाद हमेशा पैरेंथेसिस होंगे, और उसके बाद हमेशा ब्रेसेस होंगे, उसके बाद हमेशा ब्लॉक ऑफ कोड होगा, एंड सो मोर। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फंक्शन। और क्यों कह रहे हैं एक्सप्रेशन फंक्शन, क्योंकि ये जो सिनेरियो आ गया ये इस बात को एम्फसाइज करता है कि इट्स कॉल्ड एक्सप्रेशन। इसका एक्सप्रेशन बना दिया, क्या बना दिया, एक्सप्रेशन बना दिया। पास करने का अंदाज है, खड़े हो जाओ, मैंने कहा खड़े हो जाओ, मैंने कहा खड़ा हो जाओ, मैंने कहा तशरीफ आकर हो जाइए, मैंने कहा सौ बार बहुत कुछ कह सकता हूँ, ज़्यादा जज्बाती में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन नहीं तामुल में रहते हैं। तो सिंपल इस बात करने का अंदाज है, चाहे तो नेम फंक्शन कह दीजिए, चाहे तो एक्सप्रेशन फंक्शन कह दीजिए, और लेकिन हम वी ऑलवेज सेल्फ टू हैव अ बेस्ट वन ऑप्शन। इफ्तार करने का सबसे अच्छा सलीका कौन सा है, मौसिक रहकर, फॉर्मल रहकर बात करें। तो हमने ये कहा कि भाई ये तो हम कर लेंगे, अभी देख रहे हैं कि जो बेस्ट मेथड है वो इसके बाद आएगा, जो बेस्ट मेथड है इसके बाद आएगा, जो ECMAScript फॉलो करती है। और हमने जावास्क्रिप्ट की ECMAScript कैसे की, ECMAScript। तो हमने कहा कि जी ग्रीड होगा, इसकी ग्रीड की जैसे उठा लो, हमने कहा कि लोग हो जाओ, लोग के तरफ ये कहा कि सिंपल इज इट, यहाँ से बातें उठा के यहाँ पर कॉपी कर दीजिएगा, क्या जा रहा है तुम्हारा। तो हमने ये कहा कि जी होगी यहाँ पर उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, once I do this let's have a name, और हमने यहाँ पर एक सेल्फ पैरामीटर भी पास कर दिया, हमने इटसेल्फ यहाँ पर पैरामीटर भी पास कर दिया है। एंड सिंपल इज व्हाट आई नीड टू डू कि जी आपको बाकी बातें तो मालूम ही है कि फंक्शन कॉल कैसे देनी होगी, उसके लिए आपने डिलीट करके उसको बताना होगा कि जी मैं तो अलाइस की बातें कर रहा था, मैं तो अलाइस की बातें कर रहा था। तो मैंने क्या किया, कॉन्स्ट करके ग्रीट नामी वेरिएबल बनाया एज अ फंक्शन नेम। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने वेरिएबल बनाया ग्रीट नाम का एज अ फंक्शन नेम। वो जो ग्रीट वेरिएबल बनाया वो यहाँ पर क्या बन गया, फंक्शन का नेम बन चुका है, जिससे हम उसको कॉल करेंगे। उसके बाद बस मेथड चेंज हो गया, फिर हम यहाँ पर चूंकि हमने नाम दे दिया था, ऊपर हम क्या कर रहे थे, नाम के साथ डायरेक्ट पैरामीटर्स लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्स्ट करके पहले उसका नाम दिया, इक्वल करके फिर हमने फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर एक से दोबारा से पैरामीटर डिफाइन किए, दोबारा से हमने आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए, दोबारा से ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन किया। सो वो सेम सिनेरियो रहा, सो वो सेम सिनेरियो रहा। और हमने ये कहा डिलीट करके अलाइस को कॉल कर दीजिएगा। अगेन हालचाल पूछता है, क्या हालचाल है अलाइस, अलाइस ने कहा बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। तो हमने ये कहा लेट्स ऑन द पॉइंट,
काम की बात करो ना, ढाबे पे नहीं बैठे जो हाल चाल पूछ रहे, बात काम की बात करो। और क्रिकेट की बात तो बिल्कुल नहीं करनी, क्रिकेट की बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने, बस बात ही नहीं जी। अब एक्सप्रेशन फंक्शन, टाइम कम है, काम ज़्यादा है, बातें बहुत सारी हैं, और एक हिडन जेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बाकी है, इसको एट दी एंड बिल्कुल लास्ट में देखेंगे जब हमारी फंक्शन की टाइप्स होते हैं। अगर यहाँ से कोई सवाल है तो कहने लेते हैं कुछ नहीं। इसमें एक्सप्रेशन क्या है, इट्सल्फ ये जो सेंस है, अभी भी तो बताया जो एग्जांपल मैंने दी, लेट करके रेस करके जो हम पूरा वेरिएबल बनाते थे, उसके अंदर पर्टिकुलर ऑपरेंड ऑपरेटर्स रखते थे, और इट्स कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमने वही सेंस बनाया कि आया कि कॉन्स्ट करके इक्वल करके ग्रेड हमने बना दिया, और उसके बाद पूरा का पूरी जो मैथोडोलॉजी थी फंक्शन की वो इम्प्लीमेंट कर दी, जिसकी बिहाफ पर इसको नाम दिया गया एक्सप्रेशन। डेफिनेटली जो भी रिटर्न करें वो वेरिएबल नहीं चाहिए। मतलब अगर रिटर्न हो रही हो, अगर बल्कि इसको ऐसे करते हैं कि एक्सप्रेशन फंक्शन, अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो बिल्कुल लास्ट में देखेंगे जब हमारे फंक्शन के कॉन्सेप्ट itself क्लियर हो जाएंगे। और वो सवाल पिछली क्लास में भी आया था, और अभी भी वो डेफिनेटली पेंडिंग के अंदर है। सिंपल इज हमें कॉपी करना है और यहाँ पे आगे इसको कमेंट कर देना है, एंड स्पीड ऑफ द नेम भी जस्ट होगा एवन बी, एंड आफ्टर व्हाट नीड टू डू कि सिंपल इज हमने यहाँ पर आके रिटर्न करवाना है, और रिटर्न के अंदर ए प्लस बी हमने कह दिया, एंड आफ्टर ऑनवर्ड व्हाट आई नीड टू डू कि जी यहाँ पर 3 कह देंगे, यहाँ पर 6 कह देंगे, एंड आफ्टर ऑनवर्ड हमने क्या करना है कि रिटर्न करना है। अब अगेन रिटर्न करने के लिए सिंपल इज हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आके लोग को चलाना होगा, और सिंपल इज रीड 3, 6 हमने प्रिंट कर दिया, और जैसे ही रिफ्रेश किया कि जस्ट गुड नाइट। तो डेफिनेटली पर्टिकुलरली सिर्फ सिंटैक्सुअल चेंज है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, मेजर कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर भी बात करनी है। तो वो उसमें डिफरेंस है जो कि एक्सप्रेशन में अलग है और नेम के अंदर अलग है। अब अभी वो कॉन्सेप्ट जब तक फंक्शन नहीं हो जाते तब तक वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर चाहें तो हम समझने की कोशिश भी इटसेल्फ कर सकते हैं। एजेंडा एक्चुअली ये है कि इटसेल्फ फंक्शन की टाइप्स हमारी आज क्लियर हो जाए, फिर इटसेल्फ इसके अंदर जो रिकर्जन और कॉलेजल ये वाले जो क्लोजर ये जो कॉन्सेप्ट है इटसेल्फ ये पेंडिंग में रहेंगे। तो इसको हम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, और साथ इसके जो पेंडिंग टॉपिक अगर रह जाएंगे एक तो छोटे से मिनट टॉपिक, तो उसको भी कवर करेंगे। लेकिन आज की क्लास में इटसेल्फ फंक्शन हमारा ये समझ लीजिए, अजीम कर लीजिए कि कवर हो जाएगा। जी जी डेवलपर्स, तो इट्स थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको यहाँ खोल देते हैं इटसेल्फ, इसे हमने खोल दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फंक्शन, करके इसको बंद कर देते हैं, एंड लेट्स कम टू द नेम फंक्शन। नेम फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं, एंड इटसेल्फ हमने इसको यहाँ पे अनकमेंट कर दिया। यहाँ से सब फोकस कर लीजिएगा, यहाँ पर सब फोकस कर लीजिएगा, द कॉन्सेप्ट वी आर हैविंग द डिफरेंशिएट, और दोनों का डिफरेंशिएट करने लगे हैं कि नेम फंक्शन और एक्सप्रेशन फंक्शन में क्या फर्क है, और इसके आगे मजीद हेड दिस जितना भी डिफरेंशिएट है आपने करना है। तो ये दो समझ लें, इसके ऊपर हम बातचीत कर लें, इसके आगे जितनी भी बातचीत है वो आप लोग करेंगे। तो हमने ये कहा सिंपल इज हमने एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन के बाद हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, और आपको पता है कि हम प्रोसीजरल मेथोडोलॉजी को फॉलो अप लेते हैं। हमने फंक्शन बनाया, उसके बाद हमने फंक्शन कॉल चलाया, उसके बाद हमने फंक्शन कॉल चलाई। अच्छा यहाँ पर एक और चेंजेस कर लेते हैं, छोटी सी चेंज कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ द रिटर्न वी जस्ट नीड टू हैव अ लॉग। क्यों लोग कर रहे हैं अभी पता लग जाएगा, क्यों लोग कर रहे हैं अभी मालूम हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस वी आर जस्ट गोना हैव कि हम ये कह देते हैं कि सिंपल इज दैट वन नीड टू डू कि जी ए की वैल्यू 3 होगी एंड बी की वैल्यू 7 होगी। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो, ये कॉन्सेप्ट में सब फोकस कर लीजिएगा। हो क्या है कि मैंने फंक्शन बनाया, ए बी का उसमें लोड करवा दिया, उस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं कॉल करूँगा एंड मेक श्योर कर लेते हैं कोई और कोड इसके अलावा अनकमेंटेड। जैसे ही किया वी जस्ट गॉट 10, जैसे ही किया वी जस्ट गॉट 10। अब इसी ये जो मैंने कॉल चलाई, आपने एक चीज गौर की होगी कि हमने पहले फंक्शन बनाया उसके बाद कॉल चलाई। अगर मैं ये कर लूँ कि ये जो कॉल है ये मैं फंक्शन से पहले चला लूँ, ये जो कॉल है
یہ میں فنکشن سے پہلے چلا دوں تو کیا یہ چلے گی؟ کیا یہ چلے گی؟ مطلب فنکشن بعد میں بن رہا ہے اور کوڈ پہلے چلا دوں. بات میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ کہ فنکشن بنا نہیں اور میں اس کی کال پہلے دے رہا ہوں. بات میں آ رہی ہے؟ سینس بن رہا ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے میں نے اس کی کال چلا دی. علی نام کا شخص اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اور میں اس کو بار بار کال کیے جا رہا ہوں کہ علی آؤ، علی تم آؤ. تم ہی فائنینس ڈیولپر ہو گے، تم ہی فائنینس ڈیولپر ہو گے، تمہیں کچھ مارکیٹ کے اندر چینج لے کر آؤ گے. کیونکہ دل کو بھلانے کے لیے گالی فی الحال تو اچھا ہے ٹھیک ہے، ابھی تو آئے نہیں تو ہمیں دل کو بھلا حالت آتی ہے نہیں. تو سمپل ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ یہ فنکشن بعد میں بنایا لیکن اس کی کوڈ پہلے چلا دی اور ہمارے ڈیولپرز نے کہا سر نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. اور آپ یہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا نہیں چلے گا تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنی ایڈورٹائز دیکھتے ہیں اور آپ کون سی ایڈورٹائز دیکھتے ہیں یہ بھی پتہ لگتا ہے. رائٹ کی نہیں چلے گا، چلے گا پھر چلے گا. سر مجھے بھی نہیں پتا نہیں چلے گا چلے گا کیا. تو ڈیفینیٹلی ہمارا مان سنتولن یہی کہتا ہے. ہماری فنڈامنٹل انٹلیکچولیٹی تو یہی کہتی ہے کہ یہی ہوگا جو ہم کہتے ہیں. آرڈر کرنا نہیں بتانا نہیں لے لیں. ڈیولپرس سر جب آپ کو کہتے ہیں نا ڈیولپرس تو یہ موٹیویشن ہے، مجھے اچھا لگتا ہے بھلے نہیں ان شاء اللہ فیوچر میں بیٹھیں گے. تو آج کا تو آپ کو ورکشاپ پتا ہے نا، گروپ میں دیکھا آپ لوگوں نے میسج کیا ہے کچھ پتا ہے اس کے بارے میں؟ ہاں آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹ کی فیلڈ کے اندر ہے جو ویب سائٹ بنانا سیکھ رہے ہیں یہ چیزوں میں اسٹوڈنٹوں کے لیے کیا ہے اس کا پرپس؟ دراز کیا ہے؟ ویب سائٹ. فوڈ پانڈا کیا ہے؟ ویب سائٹ ہے. اوبر کیا ہے؟ ویب سائٹ ہے. کریم کیا ہے؟ ویب سائٹ ہے. کوئی فزیکل چیز نہیں کیا ہے؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارم. اب اس کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ بزنس کیا جا رہا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی چیز لیکن اس کے کام بڑے بڑے. اسٹارٹ اپ کیسے کیا جائے؟ کیسے آئیڈیاز ہیں بنا لیا آپ نے ویب سائٹ. اسٹارٹ اپ کیسے کیا جائے، لانچ کیسے کیا جائے، مارکیٹنگ کیسے کی جائے. تو اس کے لیے یہ ورکشاپ آپ لوگ لازمی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ویب سائٹ کیسے بنا لیں. ایک بندہ نہیں بناتا بھائی، پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ کس طرح سے اسٹارٹ اپ کیا جاتا ہے. تو کوشش کریں آپ لوگ آئیں، جلدی آئیں گے جلدی سیٹ مل جائے گی، دیر سے آئیں گے تو پھر سیٹ ہو سکتا ہے بک ہو جائے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے اس میں ضرور، کیونکہ اس طرح کے ورکشاپ کرنے سے آپ کے پاس آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے، تھنکنگ آئے گی، موٹیویشن آئے گی اور آپ کا سیکھنے کا اور جذبہ کچھ زیادہ پیدا ہوگا. ٹائمنگ 4 بجے کی ہے، 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک. اسپیشل رپورٹ جو سینٹ آپ پروڈکشن دے کیا ہوگا تو کوشش کریں کہ آپ لوگ آئیں اور اس نالج کو اویل کریں. فری آف کاسٹ ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. آنا ہے، بیٹھنا ہے اور نالج حاصل کرنی ہے. ورنہ یہ جو ورک شاپ ہوتے ہیں ان کی الگ سے رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر آپ لوگ اس کی فیس دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ لوگ خود فری میں آپ کو چیز ملتی ہے تو اس کو اویل کرو. اوکے، امید ہے آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. ایک اور آ گیا ورک شاپ مفتی صاحب 15 منٹ کے بعد اچھا ڈیوڈ مین ابھی میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا انیشلی کہ اس طرح کے ورک شاپ جو ہوتے ہیں سر نے بھی یہی بتایا کہ یہ موسٹلی ہوتے رہتے ہیں حیدرآباد جو ٹیک کے اندر موسٹلی یہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کاسٹ آتی ہے ان کے بیسس کے اوپر. تو ان کے بغیر چارجز ہوتے ہیں جیسے موسٹلی 1000-1500 روپے چارجز ہوتے ہیں. جیسے ٹکٹس ایسے ٹکٹ یہ کیا کرتے ہیں اس کی پرچیزنگ کرواتے ہیں جس کی بیاہ پہ آپ اس کے اندر انکلوڈ کیے جاتے ہیں. تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے لیکن آپ فلم کے اندر ہے سب کہ آپ کو یہ الاؤ ہے.
लेकिन अगर आउट ऑफ KSMIT कोई डेवलपर है तो वो इसके अंदर नहीं आ सकता, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग इसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ द कास्ट कोई आएगा तो उसके लिए डेफिनेटली टिकट सिस्टम होगा, और यहाँ पे फिल वक्त टिकट सिस्टम हमारे पास नहीं है, तो डेफिनेटली इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द SMIT डेवलपर्स इंस्टेड ऑफ द आउट कास्ट डेवलपर्स। जी डेवलपर्स बातें समझ में आती हैं? अगर बातें समझ में आती है, लेट्स कम पॉइंट और आया कि दोबारा से पॉइंट पर आ जाते हैं। हमने कहा कि नहीं चलेगा, हमने नहीं, हमारे डेवलपर्स ने कहा नहीं चलेगा, दोनों बातों में फर्क है। तो हमारे डेवलपर्स ने कहा नहीं चलेगा, देख लेते हैं, लेट्स हैव आउटपुट। अब वो डेवलपर जो कि गुस्तार कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, कीप ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन पे आ जाइए एंड बूम, चल चुका है, चल चुका है। डायलॉग गलत हो गया आप लोगों का, आपने कहा नहीं चलेगा, चल चुका है। इसने कहा चल गया, दैट्स मीन कि जी दैट्स कॉल्ड यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन, दैट्स कॉल्ड होस्टिंग। और यहाँ पर मेजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। होस्टिंग जो ये बात बताता है कि ये आएगा अगर फंक्शन डिक्लेरेशन एक की, लेकिन उससे पहले हमने कोड चला दी, तो इटसेल्फ वो क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, वो पहले फिर भी इसी को पढ़ेगा और उसके बाद इसकी कोड चलाएगा इटसेल्फ। उसके बाद ये उसके पास एक बिहेवियर है, ये फीचर है कि इसको समझ सके, एंड दैट्स कॉल्ड होस्टिंग। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, लेकिन इसके बजाय अगर यही काम हम यहाँ करना चाहें, एक्सप्रेशन फंक्शन के अंदर करना चाहें, तो फिर क्या होगा? तुक्के नहीं लगाने, तुक्के नहीं लगाने, कंफर्म है, 100% कंफर्म है। लेट्स इट आउट, देख लेते हैं। और दोबारा से अगेन जस्ट नीड टू कम ओवर हियर, और हमने एक्सप्रेशन के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर आके सिंपल इज दैट हमने अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ रिटर्न बट आई नीड टू नो कि यहाँ पर आके हमने लोड चला देना है, और लोड के अंदर कह देना है कि जी क्या हो जाए, बट आई नीड टू डू सिंपल इज दैट a प्लस b हो जाए, और जैसे ही a प्लस b हो जाए अगेन वी जस्ट नीड टू हैव दिस वन। तो हमने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद एक पाकिस्तानी डेवलपर चिपकी लगा, आदत है हमें। देखते हैं कॉन्सेप्ट को, देखें कॉन्सेप्चुअली बताएं, विजुअलाइज करें कि आया कि देखिए सेंस तो यही थी हमारी जो छठी से, वो तो यही कहती है कि भाई क्या होगा अकॉर्डिंग टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, क्योंकि चाहते हुए ना चाहते हुए प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट होता ही है, फ्लो होता है, और फ्लो ये होता है कि पहले फंक्शन चलेगा उसके बाद फंक्शन की कॉल चलेगी। लेकिन पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपने देखा नया फंक्शन में ऐसा नहीं हुआ, एंड दैट्स कॉल्ड वेस्टिंग। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अब एक्सप्रेशन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, अब भी वही कॉन्सेप्ट हो रहा है, और हमने ये जो कॉल है ये पहले चला दी, ये पहले चला दी, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अनकॉल्ड एरर, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस द ग्रीड बिफोर इनिशियलाइजेशन। बातें करते हो, इनिशियलाइज तो करते ही नहीं हो, बातें करते हो, इनिशियलाइज तो करते ही नहीं हो, बना है ही नहीं, एक्सिस्टेंस है ही नहीं, और पहले से उसको कॉल कर दो। बात में आती है नहीं? तो बात ये है कि उसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया और आप उसको कॉल कर रहे हो, और दैट्स कॉल्ड रेफरेंस एरर। आगे जाके अभी इसी बस एक दो क्लासेस के बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा, दैट्स कॉल्ड डीप कॉपी, शैडो कॉपी, रेफरेंस कॉपी, द हाईली एंड फाइनेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जावास्क्रिप्ट सीरीज। परेशान हो जाते हैं इन कॉन्सेप्ट में, परेशान हो जाते हैं। ये जो कॉपीज बनाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और ई कॉमर्स की वेबसाइट में होता ही है, ई कॉमर्स की वेबसाइट में होता ही कॉपीज के ऊपर काम होता है, मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं होता, कॉपीज के ऊपर काम होता है। मेन ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे तो प्रोग्राम चेंज हो जाएगा सारा, हमारी मेन कॉपी चेंज हो जाएगी। मेन कॉपी को चेंज नहीं करते हम, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, फंक्शन कर लिया तो मतलब आपके अच्छे दिन आ गए, फंक्शन कर लिया तो आपके अच्छे दिन आ गए, मतलब मसले बढ़ गए आपके लिए। अब मसले बताएंगे, ये सारे हाईली कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, वो हम कवर करते जाएंगे, और अब देखें कहाँ से कहाँ बोल देंगे, JWT को बोल देंगे, ऑथेंटिकेशन को बोल देंगे, सुपर बेस को बोल देंगे, ये महीना आप देखें कि समझाते हैं। तो बी अटेंटिव, फोकस रखें। ये फंक्शन तक तो आज नॉमिनल कॉन्सेप्ट एक बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जैसे ऊपर जाते जाएंगे सर का दर्द हो जाएगी प्रोग्राम। लेकिन जिनका इंटेलेक्चुअल वर्क, क्योंकि आप सभी दानिशमंद हैं, तो आपके लिए मसला नहीं है, उनके लिए मसला है जो सही नहीं सीख रहे, या इंटेलेक्चुअलिटी जिनमें नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ऑल द रिस्पॉन्सिबल एंड द इंटेलेक्चुअल वन, आप सबको दानिशमंद है, आप सबको दानिशमंद है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं होस्टिंग। दैट्स मीन कि होस्टिंग का जो बिहेवियर है वो हमारे पास नेम फंक्शन के अंदर तो है, लेकिन एक्सप्रेशन फंक्शन के अंदर नहीं। ये हो गया पहला डिफरेंशिएट। आगे जाके बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और बाकी का डिफरेंशिएट आपने अपने तौर पर करना।
और इसके थ्रू आउट एक कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया कि सर होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग नहीं होस्टिंग, होस्टिंग अलग चीज़ हो जाएगी आगे जाके, वो अलग होस्टिंग अलग, जिसको हम वो जो प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉयमेंट को होस्टिंग कहते हैं, डिप्लॉयमेंट ये होस्टिंग प्रोनाउंस थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है होस्टिंग। जी इसको ठीक है, उसको हमने कमेंट कर दिया बिकॉज वी जस्ट वांट टू हैव अ कंसोल, क्योंकि हम कंसोल करना चाह रहे थे। अगर हम रिटर्न करते तो फिर क्या करना होता है, कंसोल चलाना होगा, और जब हम कंसोल चलाएंगे तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बात समझ आई? जब हम कंसोल चलाएंगे तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा, फंक्शन कॉल करना अलग चीज़ है और फंक्शन को कंसोल में चलाना अलग चीज़ है। तो भंड आ जाएंगे, बग्स आ जाएंगे, तो हमें उनसे भी अवॉइड करना है, क्योंकि मैंने बताया ना कुछ बातें होती हैं वो सिर्फ सीखने की हद तक होती है। गलती से अगर आपने गलती कर दी प्रोडक्शन के अंदर उसके नाम भी ले दिए ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इतने मासूमाना अंदाज के अंदर, इतने पोलाइट अंदाज में, तो स्वीट अंदाज के अंदर जलील करेंगे कि आपको जिंदगी में याद रहेगा। और हमारी इनका अंदाज जो होता है ना बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो कुछ ही अल्फाज बोलेंगे, कुछ एक्शन ऐसे दिखाएंगे, लाइफ टाइम याद रखेंगे आप, लाइफ टाइम। कुछ नहीं बोलते कि मैं मैट्रिक्स के अंदर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म इतनी होती है, कल्चर हमारा इतना प्रोफेशनल होता है, फॉर्मल होता है कि जी जनाब से तो आगे बढ़ना नहीं है। लेकिन जी जनाब में वो जो करते हैं ना, बंदे की वोट लगाते हैं, बस समझते हैं कि अच्छी चीज़ें समझते हैं। तो वो जिस लेवल पर होते हैं, जब भी तो उनको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जाता है ताकि वो काम निकलवा सके, डेवलप कर सके उस लेवल पे। और उनकी प्रोजेक्ट मैनेजर कभी भी काम नहीं करता, सबसे आलसी बनता है कंपनी का, ऑर्डर करता है, काम नहीं करता प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट के ऊपर कभी काम नहीं करेगा, उसका एक ही काम होगा, काम निकलवाना, काम करवाना, ये काम करता है वो। 5 6 7 10 साल वो काम कर लेते हैं इंडस्ट्री में, उसको प्रोजेक्ट मैनेजर की चेयर मिल जाती है, अब उसका काम है काम निकलवाना, ऑर्डर चलाना, बात समझाना। द पॉइंट इज डेट इंटेलेक्चुअल बहुत होता है वो, हर चीज़ की उसको समझ होती है, मीटिंग्स वही करता है, क्लाइंट वही लेकर आता है, बातचीत वही करता है, आपको भी वही सिखाएगा, आपको वही समझाएगा, और जो उसकी सरपरस्ती में आ गया द फाइनेंस डेवलपर यू विल बी, बेहतरीन डेवलपमेंट हो गया अगर प्रोजेक्ट मैनेजर आपके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेता है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ आपके ऊपर नहीं आते, शफकत नहीं मिलती, तो आप सलीला बुखार होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर से बना के रखिएगा, और हर कंपनी के अंदर एक चमचा होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर का राइट हैंड होता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर की खास बात ये है, वो ज़्यादा चमचे नहीं बनाता, वो एक ही बनाता है, उसका एक ही होता है। जी हाँ डेफिनेटली आपको चमचा बनना पड़ेगा, लेकिन कीप इन माइंड फ्रेंड्स के अंदर कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे हैं तो आपने वो जो एक अजीब सा एक्सपोजर चलाया जाता है कि हम चीज़ें दूरी नहीं, एक्सपोजर दूरी, आपकी गुफ्तार अच्छी होनी चाहिए, डायलॉग्स अच्छी होनी चाहिए, आपका ख्याल अच्छा होना चाहिए। तो आप बातचीत इसी करें कि आप उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करें। मतलब आ रही है, आई स्टिल रिमाइंड कि एक चीज़ था कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे कंपनी के, एंड आई नेवर अप्लाई फॉर दैट कंपनी, आई नेवर अप्लाई फॉर दैट कंपनी। इनिशियल लेवल की जॉब थी, उस कंपनी में अप्लाई नहीं किया था, लेकिन कंपनी में जाने से पहले प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे थे, कनेक्शन इतने अच्छे थे कि एक बार जॉब आई, रिक्वायरमेंट आई, उन्होंने लिंक्डइन पर खुद मैसेज कर दिया, भाई बंदा चाहिए जल्दी आ जाओ। जानते भी नहीं थे, मतलब काफ़ी नहीं हुई थी, सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर इतने अच्छे कनेक्शन थे, क्योंकि बार बार क्या वो गुफ्तार, कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ प्रोजेक्ट हंटिंग, क्योंकि जॉब में आने से पहले शुरू से फ्रीलांस काम करता था, मतलब फ्रीलांस काम करता था, तो वो लोग जिनसे अब जाके 5 साल बाद मिला हूँ, वो 5 साल पहले उनके साथ काम कर चुका था। सर जुबेर आते हैं यहाँ पे इवेंचुअली, क्योंकि 2 साल ऐसे एम के अंदर हुए यहाँ पर पढ़ाते हुए, लेकिन 5 साल पहले उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था, वो उनको फंड आज भी आता है, एक फंड हुआ था उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो फंड उनको आज भी आता है। उस टाइम पे रियल टाइम मीटिंग नहीं हुई थी उनके साथ, जानते थे लेकिन मीटिंग्स नहीं होती थी, लेकिन इवेंचुअली अब साथ होते हैं और वो आज भी याद करते हैं, यार उस टाइम पे मिलते नहीं थे, लेकिन प्रोजेक्ट जब भी कर लिया था, प्रोजेक्ट जब भी कर लिया था। तो ये आपने करना है कि कनेक्शन लोगों से अच्छे रखने, बातचीत अच्छे रखने, और फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको आपकी ग्रेजुअल सक्सेस के अंदर कोई चीज़ आपको होगा। बाकी आपकी मेहनत इंशाल्लाह बड़ी मैटर करती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सिंसियरिटी अपने काम के साथ लगाओ, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आई कैन स्टिल रिमाइंड दैट कि जी ना खाने की फिक्र थी ना पीने की फिक्र थी, वो सवाल था, सिर्फ वो सवाल था। बात हमारी ये क्रिकेट गेमिंग का क्रेज है बचपन से, गेमिंग का क्रेज था, लेकिन आई स्टिल रिमाइंड कि उस टाइम पे गेमिंग सब कुछ बिल्कुल स्टॉप, बस क्रेज आ गया था। एक बंदे ने अपने जो है $1000 शुरू करवा दिए थे,
जिस वक्त पर मैं पी के आर 10,000 अर्न करता था तो उस वक्त उसने $1,000 अपने शो करवा देते भाई ये देखा अकाउंट के अंदर मेरे पास तो आ रहा है। तो वो इतना वो क्रेज आ गया था और उस दिन के बाद जो है ना बोला अब बस ये कन्वेंशनल और टिपिकल जॉब्स नहीं करनी, अब डेवलपमेंट ना। ये पता लग गया था ये डेवलपमेंट क्या, काम करना भी गनीमत, डेवलपमेंट का बोलना भी गनीमत, डेवलपमेंट का पढ़ाना भी गनीमत, एंड सो मोर एक्सपोजर ही एक्सपोजर है एक्सपोजर। अच्छा हम जो है हमारी गलती ये करते हैं फाइनेंस से हर चीज़ को कन्वर्जन करते हैं। फाइनेंस तो आ ही जाती है आपके पास, कुछ बड़ा करेंगे फाइनेंस तो खुद ही ऑटोमेटिकली आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपोजर की बात की जाती है, मार्केट एक्सपोजर आपको मिल जाता है। चलें दैट्स नॉट द पॉइंट, बातें तो होती रहेंगी और इट्स अबाउट 10:41। जी यहाँ तक की बातें समझ में आती है कि नहीं, हॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि नहीं, जिनको आदत है कैंडिडेट में पैर देना, जिनको आदत है कैंडिडेट नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज। और कोड आपके सामने सिंपल इज देख लें, कुछ भी नहीं किया, फंक्शन बना हुआ था, हमने कोड पहले चला दी, मतलब चलाई एक्सप्रेशन फंक्शन के अंदर तो वो काम नहीं किया, लेकिन नेम फंक्शन के अंदर यही कॉन्सेप्ट काम कर गया और इसी को कहते हैं वर्स्टिंग। जो काम कर जाए उसी को कहते हैं वर्स्टिंग, जो काम नहीं करे दैट मीन वो वर्स्टिंग की फीचर नहीं रखती, वो फंक्शन वर्स्टिंग की फीचर नहीं रखती। इट्सल्फ काम काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी होगी। तो डेवलपर्स काइंडली अब यहाँ से इंश्योर रहिएगा, अब हमारा कोई भी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, चीज़ें आसान है, तो फोकस रहिएगा। सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास और कोशिश करिए 5 मिनट के अंदर 3-4 फंक्शन जो देते हैं वो हम कवर करें, क्योंकि डिटेल जो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन थी वो सारी हो चुकी है। डिटेल जो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन थी वो सारी प्रॉबली हो चुकी है और समथिंग अब कुछ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर डिटेल हमें जाना है। जी डेवलपर्स, तो टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं एंड दैट्स कॉल्ड एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन इज दी हाईली 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 यूजेबल फंक्शन, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और एक्मा स्क्रिप्ट का जो वर्जन है एस प्लस एक्मा स्क्रिप्ट जब आई और उसके एडिशन जब आए तो ये वाला फंक्शन यूज होने लग चुका तो इसको प्रियोरिटाइज करना शुरू कर दिया गया था। और कीप इन माइंड कि आल्सो प्रियोरिटाइज टू हैव दिस वन एक्मा स्क्रिप्ट का एरो फंक्शन आपने यूज करना है। और एरो फंक्शन इटसेल्फ क्या कहता है कि जी आपने ये कहना है कॉन्स्ट करके कि मान लीजिए मेरा ग्रीट होगा और ग्रीट के अंदर इटसेल्फ मेरा जो है पैरामीटर होगा और पैरामीटर के बाद मैंने एरो बनाना है और एरो के बाद मैंने ब्रेसेस लगाना है एंड दैट प्रोबेबली वी हैव जस्ट द ब्लॉक ऑफ कोड और हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है। हमने क्या किया, ग्रिड लिखा, ग्रिड के बाद हमने पैरेंथेसिस लगाए और ब्रेसेस लगाए, छोटा सा कोई एरर आता है कोई अगर बता दे कि वो क्या है ऊपर वाला, हाँ दैट वी हैव प्रोबब्ली इनिशियलाइज अहेड और हमने पहले से उसको इनिशियलाइज किया हुआ क्या है, बार बार रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर तो कॉन्सेप्ट फंक्शन के अंदर नहीं है, नहीं कहते। तो हमने सब ये कहा कि जी सेंटेक्स, सिर्फ काम सेंटेक्स का बात तो वही है सारी, सेंटेक्स समझने आपने कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट के बाद उसका नाम दिया, इक्वल लगाया, एरो फंक्शन के लिए आपने पैरेंथेसिस लगा दिया, सिंपल पैरेंथेसिस लगा दिए पैरामीटर के लिए और उसके बाद एरो डिफाइन कर दिया और उसके बाद ब्रेसेस लगा दिया। अगर आप चाहते हैं कि फिर एरो फंक्शन की फायदा क्या होगा, तो फायदा ये होता है एरो फंक्शन का कि आप मान लीजिए आपके पास ए प्लस बी है और इसका नाम इंस्टेड ऑफ द ग्रेड आप सम दे दीजिएगा और सम देने के बाद इंस्टेड ऑफ दिस वन आप ये कह दीजिएगा कि ए प्लस बी और ये बन गया हमारा फंक्शन। कोई बताएगा इसमें क्या गलती है? कोई और बताए प्रेसेस के अलावा क्या नहीं है? नहीं लगाने, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाने, क्या लगा सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट हमने नहीं लगाने, समझे बात? ए बी के अंदर हाँ बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में, देखना कहें और देखते कहें, देखना कहें और देखते कहें ए कॉमा बी, दैट्स मीन कि यहाँ पर हमारे चूंकि पैरामीटर्स हैं और एक्सेल ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, सिंपल रिजल्ट होगी फंक्शन बन गई। अब फंक्शन कॉल कर दीजिएगा और फंक्शन क्या कॉल कर दीजिएगा, डेफिनेटली लो कर दीजिएगा और लो के अंदर क्या कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा और सम के अंदर उसकी वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा, इसका मतलब 5 and 4 5 and 4 एंड जस्ट डिड इट और हमने जैसे ही किया क्या आ चुका है?
9 आ चुका है और एरो फंक्शन ये कहता है आप सम लिखो, आप उसका नाम लिखो, आप उसकी पैरेंथेसिस बनाओ, पैरामीटर डिफाइन करो, एरो लगाओ और उसके बाद डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू को रिटर्न करवा दो। क्या करना है, वैल्यू को रिटर्न करवा दो और जब आप इसे डायरेक्ट लिखते हैं दैट मीन कि आपकी वैल्यू रिटर्न हो चुकी है, आपने कुछ नहीं लिखा, आपकी वैल्यू रिटर्न हो चुकी है। ये बात अंडरस्टूड है, ये बात एरो फंक्शन के अंदर अंडरस्टूड है कि आप जब कुछ नहीं लिखेंगे तो आपकी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो, और जब वैल्यू रिटर्न होती है तो आपको लॉग करना होता है, तो हमने लॉग के अंदर फंक्शन चला दिया और सिर्फ हमारी वैल्यू जो रिटर्न हो रही थी उसका पर्टिकुलर आउटपुट हमारे पास ऐसे हो चुका है, रिटर्न हो चुका है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये कहते हैं कि भाई क्या होता है कि सिंपल रिटर्न नहीं करवानी बल्कि लोड करवानी है मैंने, तो फिर क्या होगा, ये सेंटेंस दोबारा फॉलो ले लीजिएगा और फिर आपको आगे प्रेसेस लगाना होंगे, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड बनाना होगा। फिर अगेन उसके अंदर कोई आप रिटर्न नहीं करवाना चाह रहे तो आप उसके अंदर लोड करवा दीजिएगा और लोड के अंदर कह दीजिएगा ए प्लस बी, लोग कहते कह दीजिएगा ए प्लस बी और स्टिल अगेन यू जस्ट नीड टू डोंट हैव दिस, तो आपने कहा कि जी सम हो जाए, सम के बाद आपने ये कहा कि 5 एंड सो ऑन। अब डायरेक्ट आप अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उसके अंदर जो लोग चल रहे हैं आप वो लोग चला सकते हैं, सिंपल इज दैट। और जो कि स्टिल की डिमांड है, आप एरो फंक्शन पे काम कर रहे हैं, लेकिन एरो फंक्शन का काम ये है कि सिंटैक्स को नॉर्मलाइज करना जाए, उसको शॉर्ट किया जाए, उसको कंसाइज किया जाए। बात में आ रही है, तो एडवांस और बेस्ट सिंटैक्स होता है ये हमारी डेवलपमेंट के अंदर फंक्शन करने के अंदर। तो वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज टू यूज दिस, तो जिसको ही प्रीफर किया जाता है यूज करने के अंदर, यूजेबिलिटी के अंदर। जी, तो सिंपल इज दैट, हमने लॉग किया एंड वी जस्ट गॉट 12 हमारे पास रिसीव हो चुका है। बातें समझ में आती हैं कि नहीं, और हम इसको इसलिए भी प्रायोरिटाइज करते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ एरो के मेथड्स हैं जो एरो फंक्शन के ऊपर ज़्यादा फिट होते हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ किया जाए। तो अभी बस से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एरे ऑब्जेक्ट है डेफिनेटली, तो उसके अंदर ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम इसको यूज़ कर लें। छोटा सा पॉज लेते हैं, मीन वाइल दुकानें बंद कर दीजिएगा, इररिलेवेंट ना बोलना है, इररिलेवेंट ना कुछ करना है, सो ब्रेक लगा लीजिएगा, उसके बाद जो कुछ रह गया है उसके ऊपर बातचीत करते हैं।